everyone, I am CA Dhwani Ahuja and today I will be teaching a chapter called Cash Flow Statement. I know some of you find that chapter a little difficult, but just keep following my videos and the chapter will become really easy and interesting. Let's get started. What is cash flow statement? It's a statement that's going to show us movement of cash, that is inflow and outflow of cash in a business. कंपनी में कितने पैसे आए हैं और कितने पैसे गए हैं वो हमें इस स्टेटमेंट से पता चलने वाला है. Now, this statement is prepared at the end of the year. After your financial statements, that is profit and loss and balance sheet are prepared. वो बनने के बाद हम पूरी कैश की मूवमेंट को एनालाइज करने वाले हैं. That's why cash flow statement comes under analysis of financial statement. There are two methods of preparing cash flow statement. One, direct, and the second one is indirect method. The direct method is not in our syllabus. We are only going to study the indirect method. As per indirect method, cash flow is divided into three activities: operating activity, investing activity, and financing activity. What is operating activity? हमारा main business activity. What is the main business activity? Buying and selling of goods. So operating activity में जो मेन बिजनेस एक्टिविटी से कैश फ्लो हुआ है वो पता चलेगा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करने से. नेक्स्ट वन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. नेम सजेस्ट, इन्वेस्टिंग मींस इन्वेस्टमेंट. एक कंपनी कहाँ पैसे इन्वेस्ट करती है? फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में या दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदने में. दैट कम्स अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सो द मूवमेंट ऑफ कैश फ्रॉम दीज आइटम्स इज गोइंग टू गो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. लास्ट वन, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. एक कंपनी है, उसको फंड्स चाहिए कंपनी चलाने के लिए. सो सोर्स ऑफ फाइनेंस इज गोइंग टू कम अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी. कहां से हम फंड्स रेज करने वाले हैं? कौन से वेज होते हैं फंड्स रेज करने के? कंपनी शेयर्स इश्यू कर सकती है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी डिबेंचर्स इश्यू कर सकती है या सिंपली बैंक से लोन बोरो कर सकती है. All these are going to come under financing activity. Now, today we are only going to study operating activity. In the coming videos, we are going to study investing and financing activities. Let's have a look at the format of operating activities. First, as I told you, we are going to start after the preparation of profit and loss and balance sheet. So, we are going to start with the profit from profit and loss statement. Now, this has all the items included in the profit and loss account. So we have to reverse a few items. So operating activity is going to be classified into 4 stages. So in the first stage, we are going to reverse any transfer to general reserve that you have done, any dividend that you have deducted, any provision for tax you have created, or any extraordinary item. कौन से हैं extraordinary items? Suppose calamity आ गई, आपको insurance proceeds मिले, वो सब हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में आते हैं. तो हमें उन्हें रिवर्स करना है, इसलिए हम उन सबको ऐड बैक कर रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट स्टेज. 4 आइटम्स इन फर्स्ट स्टेज. फर्स्ट, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. रेपिटेटिवली आप 4 आइटम बार बार बोलेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा. अब हम अराइव होते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. इसके बाद again 4 more items are going to come. ये भी part of operating activity नहीं है, इसलिए हम इन्हें भी add back कर रहे हैं. What are those items? Depreciation. Next, goodwill. Goodwill written off होना चाहिए. अगर हमारी goodwill decrease हो रही है हमारे financial statements में, मतलब उसे write off बोलते हैं. ये second part में आने वाला है, हम उसे add back करेंगे. Next, any interest you have paid on your long term borrowings. जैसे कि हम बैंक लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट पे करते हैं, डिबेंचर्स देते हैं उन पे भी इंटरेस्ट पे करते हैं, वो सब हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है. तो उसका इंटरेस्ट वापस ऐड बैक करेंगे क्योंकि वो पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, एक्चुअली वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, व्हिच आई विल एक्सप्लेन इन द लेटर वीडियोस. लास्ट, एनी प्रॉफिट और लॉस यू हैव इनकर्ड ऑन सेल ऑफ योर फिक्स्ड एसेट्स. वो क्या होता है? डायरेक्टली हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देते हैं. प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, लॉस है तो माइनस कर देते हैं. सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग. दैट्स व्हाई वी आर एडिंग इट बैक. अगेन इन द सेकंड पार्ट आल्सो 4 आइटम्स: डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ,
interest on long-term borrowings, and profit or loss on sale of fixed assets. Now, actually we have arrived at operating profit. This is where actually we have reached our operating activity. So, operating profit before working capital changes पे हम arrive हो गए हैं. 2 more parts remaining now. What is working capital changes? I hope you all know your working capital items. That is current assets and current liabilities. ये दोनों आइटम ही आने वाले हैं हमारे यहाँ पे. अब बेसिक कॉमन सेंस है, अगर करंट एसेट्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब हम खरीद रहे हैं. एग्जाम्पल, सपोज आपके पास इन्वेंट्री थी 1 लाख की, अब इन्वेंट्री हो गई है 1.5 लाख की. इन्वेंट्री बढ़ रही है. अगर इन्वेंट्री बढ़ रही है तो कैश क्या हो रहा होगा? आउटफ्लो हो रहा होगा. कैश आउटफ्लो है, कैश जा रहा है, मतलब हमें कैश को लेस करना है. अगर हमारे करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं तो हमारा कैश आउटफ्लो होता है. वाइस वर्सा, अगर हमारे करंट एसेट डिक्रीज हो रहे, कम हो रहे, तो हमारा कैश इनफ्लो होता है, इसीलिए हम उसे ऐड करते हैं. करंट लायबिलिटीज कंप्लीटली ऑपोजिट. सपोज आपके क्रेडिटर्स हैं 1 लाख के और आपने उन क्रेडिटर्स को पे कर दिया है, तो अब हमारे क्रेडिटर्स हो गए हैं 90,000 के. हमने उन्हें पे कर दिया है, तो पैसे चले गए, इसलिए वो डिक्रीज हो गए हैं. That's why decrease in current liability is going to come under less outflow of cash. Increase opposite हो जाएगा, उसे हम add कर देंगे. जब हम sum solve करेंगे, मैं इसका एक ट्रिक आपको समझा दूंगी, तो उससे आपको easily याद हो जाएगा. एक ही आइटम याद रखना है, तब ये 4 आइटम याद रखने की जरूरत नहीं है. But yes, जब हम sum solve करेंगे, तब I'll explain this trick. After doing the working capital changes, we are going to arrive at cash generated from operations. Now, ये जो last part है, ये सब sums में नहीं होता है. Suppose this part is not there in any of your sums, you will automatically reach cash flow from operating activities. But in case it is there in your question, you have to include it. 2 आइटम आते हैं, extraordinary item और refund of tax. These 2 items are going to come here. Extraordinary item, अगर हमें पैसे मिले हैं, सिंपल इनफ्लो हो रहा है, ऐड करना है. रिफंड ऑफ टैक्स को हम रिवर्स करते हैं, इसके लिए हमें उसे लेस कर देना है. नाउ वी आर गोइंग टू अराइव एट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट. कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड 2,15,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 45,000, final dividend paid during the year 50,000, depreciation 25,000, loss on sale of machinery 10,000, patents amortized 30,000, gain on sale of land 70,000, income tax refund 30,000. So first हमने quickly question को read करना है and then we have to stick to the format that I just explained. First we have to start the question with net profit after tax. इस activity में हम 2 column बनाने वाले हैं, inner and outer. So net profit after tax we are going to write in the outer column 2,15,000. अब फर्स्ट लाइन में हमारे 4 आइटम्स आने वाले हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड ट्रांसफर टू रिजर्व्स. इन आवर क्वेश्चन देखेंगे कौन से आइटम्स हैं. प्रोविजन फॉर टैक्स है, डिविडेंड है एंड लास्टली इनकम टैक्स रिफंड है. ये तीनों आइटम्स फर्स्ट लाइन में हमें लिखने हैं. So, सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आइटम हमेशा ऐड होता है. कितना है इसका अमाउंट? 45,000. ये प्रोविजन हमने क्रिएट की हुई थी पहले, तो इसलिए अब हम इसे रिवर्स कर रहे हैं. वी आर एडिंग इट राइट नाउ. नेक्स्ट आइटम डिविडेंड पेड. डिविडेंड पेड इज नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट इज पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग, इसलिए हम यहाँ इसे ऐड बैक कर रहे हैं. सो दैट इज 50,000. लास्ट आइटम इनकम टैक्स रिफंड, वो हमें सब्ट्रैक्ट करना है. इनिशियली वो ऐड हुआ होगा, इसके लिए हम उसे अभी सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं. दैट इज 30,000. इसका फाइनल अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 65,000. अब ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसे ऐड करेंगे. 215 we are going to add it to 265, we are going to get 2,80,000.
Now we have arrived at net profit before tax and extraordinary items. इसके बाद अगेन चार चीजें कौन सी आती हैं हमारी? डेप्रीसिएशन, गुडविल रिटन ऑफ, if there is any profit or loss on sale of our fixed assets, और interest paid on our long term borrowings. अब देखेंगे हमारे क्वेश्चन में क्या क्या है. डेप्रीसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी है, पेटेंट्स अमोर्टाइज सेम, गुडविल पेटेंट्स रिटन ऑफ सेम आइटम, देन देयर इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड. ये चारों चीजें हमें लेनी है. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेप्रीसिएशन से. एड बैक, क्यों एड बैक कर रहे हैं डेप्रीसिएशन? ये नॉन कैश आइटम है. इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड डेप्रीसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस. हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, सो हमें सिर्फ कैश के रिलेटेड आइटम्स ही चाहिए. सो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है 25,000, उसे भी इनर कॉलम में लिखेंगे. ये सब एडजस्टमेंट्स हम इनर कॉलम में करते जाएंगे. नेक्स्ट आइटम लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इसे भी इनर कॉलम में लिखना है. दैट इज 10,000. नेक्स्ट आइटम पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड, पेटेंट्स रिटन ऑफ, अमोर्टाइज, रिड्यूस हो रहे हैं हमारा वैल्यू, दैट इज 30,000. लास्ट आइटम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड. अगर प्रॉफिट हो रहा है सो हमें उसे माइनस करना पड़ेगा. लॉस हमेशा प्लस करना है, प्रॉफिट हमेशा माइनस करना है. एक्चुअली हम रिवर्स कर रहे हैं, पहले ऐड करते हैं, अब इस कैश फ्लो में हम उसे रिवर्स करने वाले हैं, इसलिए प्रॉफिट को हम माइनस करें. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड दैट इज 70,000. अब इसका टोटल हमें लिखना है आउटर कॉलम में. द पॉजिटिव टोटल इज कमिंग 65,000, नेगेटिव टोटल इज कमिंग 70,000, सो फाइनल आंसर इज गोइंग टू कम -5,000. अब ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला था 280, उसमें से हम ये 5,000 माइनस करेंगे. सो वी आर गोइंग टू अराइव एट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 2,75,000. After this step, we have our working capital changes, that is current asset increase, decrease, current liability, all of that. इस particular question में वो नहीं है. So ultimately this is nothing but cash from operations. अब cash from operations आने के बाद हमें last के दो items करने हैं, that is provision for tax and income tax refund. This item is called as tax paid. ये टैक्स पेड का अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं? जो प्रोविजन हमने क्रिएट की है, प्रोविजन जो क्रिएट की है वो हम पे करेंगे, दैट इज 45,000. और हमें टैक्स का रिफंड मिला हुआ था ऊपर, याद है आप सबको 30,000, वो हमें रिटर्न आया है 30,000. सो नेट अमाउंट टैक्स का हम कितना पे करने वाले हैं? 15,000. 45 की प्रोविजन एंड 30 का रिफंड. अब इनकम टैक्स रिफंड के दो इफेक्ट होते हैं एंड प्रोविजन फॉर टैक्स के भी दो इफेक्ट होते हैं. फर्स्ट इफेक्ट प्रोविजन फॉर टैक्स, यहां हमने ऐड करना है, बाद में नीचे जाके माइनस करना है. टू इफेक्ट्स, इट इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी ओनली, बट वी हैव टू शिफ्ट इट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट्स व्हाई हम पहले ऐड करते हैं, बाद में माइनस करते हैं. नेक्स्ट इनकम टैक्स रिफंड, यहां माइनस करें, यहां पे आप देखेंगे तो ऐड करें, लेस मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाता है. So income tax refund is also part of operating, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे उसे शिफ्ट करें. So net tax जो हम पे करने वाले हैं that is 15,000. After subtracting this, final answer पे हम arrive करेंगे, that is cash flow from operating activities. That is going to come 2,60,000. अब एग्जाम में आपको फुल कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आ सकता है which will include all three activities, या इंडिविजुअल एक्टिविटी भी आ सकती है for 6 marks. So a question like this can come in the exam for 6 marks. Let's see one more question. Calculate cash flow from operating activities from the following information.
Net profit before tax 8 lakhs, final dividend 1 lakh 10, compensation 75,000, depreciation 1 lakh 50,000, loss on sale of investment 30,000, gain on sale of land 90, provision on tax 1 lakh 10, dividends received 20, decrease in current assets 40, increase in current liabilities 70, decrease in current liabilities 10, increase in current assets 60, income tax refund 10, income tax paid 120. As usual, first we have to start with net profit after tax. So, net profit after tax is 8 lakhs. Outer column as usual. Again, first line, let's repeat. The more you repeat, it's going to stick in your head. So, 4 items in the first line that are transfer to general reserve, provision for tax, dividend, extraordinary item. हमारे क्वेश्चन में कौन से आइटम है? सबसे पहले है फाइनल डिविडेंड पेड, देन देयर इज प्रोविजन फॉर टैक्स, देन देयर इज कॉम्पेंसेशन दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और लास्ट आइटम है इनकम टैक्स रिफंड. सो सबसे पहले है डिविडेंड पेड, वो हम ऐड करेंगे. दैट इज 1,10,000. नेक्स्ट आइटम है प्रोविजन फॉर टैक्स, दैट इज ऑल्सो 1,10,000. अब 2 आइटम है जो हमें लेस करने हैं, दैट इज कॉम्पेंसेशन और नेचुरल डिजास्टर क्रेडिटेड. क्रेडिटेड मतलब हमें ये डिजास्टर का क्लेम मिला है, अब हमें उसे रिवर्स करना है, सो हमें उसे लेस करना पड़ेगा. दूसरा आइटम जो हमें लेस करना है, लास्ट आइटम इनकम टैक्स रिफंड. ये दोनों आइटम हमें लेस करने हैं. कॉम्पेंसेशन 75,000 एंड इनकम टैक्स रिफंड 10,000. ये दोनों आइटम्स हमारे लेस होने वाले हैं. नाउ आफ्टर ऑल दीज 4 items, the outer column figure will be 1,35,000. In 8 lakh, we are going to add 1,35,000. So we are going to arrive at net profit before tax and extraordinary items. That is going to be 9,35,000. अब let's go to the next point, जिसमें again 4 items आते हैं. Depreciation, goodwill written off, interest on long-term borrowings, and any profit or loss on sale of fixed asset. हमारे क्वेश्चन में क्या क्या है? डेप्रीसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी है. वन न्यू आइटम इन दिस क्वेश्चन दैट इज डिविडेंड रिसीव्ड. हमें इनकम मिली है, उस इनकम को हमें यहाँ से माइनस करना है. दैट इज अगेन नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इसलिए हम यहाँ पे उसे लेस करने वाले हैं. सबसे पहले ऐड डेप्रीसिएशन, $1,50,000. Next item, loss on sale. Loss on sale of investment है 30,000. अब 2 आइटम जो हम लेस करने वाले हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड या प्रॉफिट ऑन सेल, दैट इज 90,000. और डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है, इसलिए उसे हमें रिवर्स करना है और हमें उसे माइनस करना है. अब ये चारों का टोटल करके आउटर कॉलम फिगर आने वाला है 70,000. आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू अराइव एट ऑपरेटिंग प्रॉफिट before working capital changes, that is 10,05,000. I will continue here. Now operating profit before working capital changes. अब हमें working capital changes के items लेने हैं. जैसे मैंने आपको बताया था, one small trick that I am going to tell you, when current assets increase हो रहे हैं, करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है मतलब हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है, हमें उस आइटम को
माइनस करना है। अगर हमारे करंट एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो हमारा कैश इनफ्लो होता है, हमें उस आइटम को प्लस करना होता है। लायबिलिटी के लिए ऑपोजिट होने वाला है। अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो उस आइटम को इनफ्लो बोलते हैं, हमारे पैसे आ रहे होते हैं। अगर हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो हमें उसे माइनस करना है। अब आप एक कोई भी आइटम याद रखेंगे, बाकी के उसके ऑपोजिट होते हैं। सो आई फाइंड दिस इजी। अगर करंट एसेट इंक्रीज है तो माइनस करना है, करंट एसेट डिक्रीज है तो प्लस करना है। लायबिलिटी के लिए उल्टा करना है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करना है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करना है। अब क्वेश्चन में हमें दिया है, स्ट्रेट अप दिया है, डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। सो हम स्ट्रेट अवे वही लिखने वाले हैं। फर्स्ट, डिक्रीज इन करंट एसेट। डिक्रीज इन करंट एसेट हमारा एड आइटम है। अगर हम इन्वेंट्री सेल कर रहे हैं तो हमें पैसे आएंगे। इट इज गोइंग टू बी इनफ्लो, दैट इज 40,000. Then next item is increase in increase in current liabilities. Increase in current liabilities add 70,000. इन दोनों का opposite is going to go in less. That is decrease in current liabilities. Decrease in current liability 10,000. इसे हमें माइनस करना है। देन इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इसे भी हमें माइनस करना है। सो हमारा आउटर कॉलम फिगर आएगा 40,000। अब तक हम पहुंचे थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 10,05,000 पे। हमारा वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ रहा है 40,000। सो वी आर गोइंग टू अराइव एट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा 10,45,000. अब लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, two items are going to come. One extraordinary item, second income tax paid. Extraordinary item हमारा कौन सा है? यहाँ compensation. यहाँ पे हमने compensation को less किया था, अब इसका opposite करना है लास्ट लाइन में। यहाँ हमें उसे add कर देना है। जो हमें नेचुरल डिजास्टर से कॉम्पेंसेशन मिली है वो हमारा ऑपरेटिंग का ही पार्ट है, बट डजंट कम इन द फर्स्ट लाइन, इट कम्स इन द लास्ट लाइन। दैट्स व्हाई वी आर एडिंग इट ओवर हियर। कितनी कॉम्पेंसेशन मिली है? 75,000. नेक्स्ट आइटम इज इनकम टैक्स पेड। इसमें आपको दो आइटम्स कंसीडर करने हैं, इनकम टैक्स पेड और रिफंड ऑफ टैक्स। दैट इज द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। इनकम टैक्स पेड हमने पे किया है 1,20,000 और हमें रिफंड मिला है 10,000 का। सो हमारा जो नेट टैक्स अमाउंट हमने पे किया है वो है 1,10,000. ये आइटम हमेशा नेट ऑफ रिफंड ही आएगा, जितना पे किया है और जितना रिफंड मिला है। सो नेट अमाउंट हमने पे किया है 1,10,000. सो आउटर कॉलम फिगर -35,000. दैट्स इट. नाउ वी आर गोइंग टू अराइव एट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. That's going to be 10,10,000. This is a comprehensive question of exclusively operating activity. आप सिर्फ ये सम सॉल्व करेंगे, आपको पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ आ जाएगा. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to my channel. In case of any doubts, please write in the comment section. See you in the next videos. Thank you for watching.